Hello everyone, and a very good evening to all of you, and welcome to Career Launcher. So, in this class, we are going to discuss the GK and current affairs for the CMAT examination. So, in this Saturday at 8:30 p.m. and the next Saturday at 8:30 p.m., we will discuss important general knowledge questions for the CMAT examination. So, in these two classes, we will actually discuss previous year questions and things around it. So, I will try my best to ensure that the type of questions which they are asking, I will discuss those questions only, so that it would become easy for you, that in short span of time, you will learn more and actually be able to answer the questions. Okay. So in today's class, we will discuss some polity questions, polity means the constitution related things, the laws and all. Then we will discuss some history questions, some previous year question also. And after that, we will discuss some science and technology question if required, if the time permits. Otherwise, science and technology will be done in the next Saturday, 8:30 p.m. Okay. So let us begin. So I think, am I audible, visible? Everything is fine. So let us begin today's class. So if everything is fine. अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप एक बार कमेंट्स में लिख दो, yes sir, you're audible, so that we can start our session. Is everything clear? Yes, Dave, we will try our best to cover as much as possible. Okay, so nothing to worry. Okay, yes, audible, fine. So let us begin. Okay, before that, एक बात कहनी है कि subscribe to the channel and press the subscribe button. Go on our live section. एक मैंने पहले क्लास लिया ZAT का, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का क्लास लिया है. सो गो एंड वॉच इट, बिकॉज ये भी ZAT की भी बहुत सारे क्वेश्चन CMAT टाइप में होते हैं, ठीक है. सो मेनी ऑफ देयर क्वेश्चंस आर हेल्पफुल फॉर दैट. फिर इसी लाइव वाले में नीचे जाओगे तो आपको 2 और क्लास मिलेगी. उसमें लिखा होगा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस करके, ब्लू कलर का थंबनेल होगा, और एक होगा पॉलिटी क्वेश्चंस, ब्लू कलर का थंबनेल होगा, विच मेरी फोटो लगी होगी इसमें, तो वो दोनों भी क्लास देख लोगे. दिस इज फॉर दैट, बट दैट दोस वीडियोस आर फॉर दैट, बट इट इज हेल्पफुल फॉर CMAT आल्सो. ठीक है, तो वो दोनों भी आप देख लेना. Akash, this class will be on Saturday 8:30 p.m. ठीक है, so next Saturday also. Okay, so let us begin with previous year questions, because somehow or the other the previous year questions gets repeated, है ना. So Article 356 of the Indian Constitution deals with what? Okay, Praveen, great. If you are following my flat playlist also, thanks. Okay, Article 356 of the Indian Constitution deals with what? So basically, you should be knowing that it deals with. If you know, please answer me. I'm waiting for the answer. The answer is C, imposition of president rule in the state. So Article 356 talks about it. This is also called as a state emergency. When the chief minister is removed, there are many reasons why it happens. This is also called as state emergency. Then we have national emergency also. So which article talks about national emergency? अभी recently एक film भी आई थी emergency से related, है ना. So national emergency is related which article? Article 352. Okay. So till now we have seen 3 national emergency in India. अभी तक 3 national emergency आया है, ठीक है. And the most famous one was actually in 1975 during the time of Indira Gandhi, and 1975 to 1977. I hope you are aware of that. Okay, so this you should know. So the right answer is C is the right answer. Okay, आप देखोगे है ना, if the president can, Article 356 है ना, complete failure of constitution machinery of state भी इसको कहते हैं. So this you should be knowing about. Now one more thing I will be asking. So when I'm saying about national emergency, that national emergency was imposed by Srimati Indira Gandhi ji from 1975 to 77. There was a very famous constitutional amendment which was brought during this time. What is the name of that constitutional amendment? Can anyone tell me? I'll be very happy to know from you. एक बहुत फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उस टाइम पर,
and this was brought in 1976, which brought a lot of changes in the Indian Constitution. And can anyone tell me? The right answer is actually 42nd Constitutional Amendment. ठीक है, याद रखिएगा, बहुत फेमस हुआ था, and because of which, since it brought a lot of changes in the Indian Constitution, it is actually called as mini Constitution. ठीक है, this you should be knowing. ठीक है, ये सब पूछते हैं what is mini Constitution, and ये M कट जा रहा है कैमरा में, रुक जाओ इधर लिख देता हूँ, let me write it clearly. Mini Constitution. ठीक है, okay, so let us move on to the next question, and this question is actually quite prominently asked in XAT, CMAT, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि borrowed, actually I hope you are aware that in Indian Constitution actually has a lot of features which were borrowed from different countries, है ना, दूसरी जगह से borrow किया हुआ भी है. I hope you are aware, like many provisions, है ना. So आपको इसे मैच कराना है कि कौन सा प्रोविजन कहां से borrow किया हुआ है. So that is what you have to tell me. So the constitutional provisions of Indian Constitution and adopted from which state, which country, or borrowed from which country. And I think these are easier ones, so I'm expecting you all to know. Please tell me. I'll be very happy if you can answer me. Ratan Tata sir. Praveen, I have made a video on Ratan Tata sir. तो आप YouTube पे जाना और सर्च करना Ratan Tata career launcher law entrance. So on our law entrance channel, on the CLAT channel, I have made a video. ठीक है, तो आप ये सर्च करना तो आपको रतन टाटा सर पे वीडियो मिल जाएगा. ठीक है, ग्रे कलर का थंबनेल होगा, रतन टाटा की फोटो लगी होगी, so you can watch that. ठीक है. Now let me discuss it. The fundamental rights of the Indian Constitution has been borrowed from US Constitution. बहुत फेमस है, USA में बिल ऑफ राइट्स था. ठीक है, वहां से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स. दिस इज जो मैं बता रहा हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चांसेस ऑफ रिपीटेशन इज वेरी हाई. देन आपने ये सुना होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत फेमस है, DPSP, टेकन फ्रॉम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आयरलैंड से लिया गया. इरिश मतलब आयरलैंड. ठीक है. दूसरा प्लानिंग कमीशन का आपने नाम सुना होगा. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड 5-year प्लान एंड ऑल. अब ये 5-year प्लान नहीं होता है. सो प्लानिंग कमीशन 5-year प्लान टेकन फ्रॉम सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब USSR. USSR मतलब 1991 से पहले, बिफोर 1991, रशिया वाज कॉल्ड एज USSR बिकॉज इट कंप्राइज्ड ऑफ रशिया प्लस 15 अदर नेशंस आल्सो, है ना. काफी बड़ा था USSR, जिसको सोवियत यूनियन कहते हैं. ठीक है. और लास्ट जो ऑप्शन बी बचा है, residual power. So residual power taken from Canadian Constitution. So this you should be knowing about. ठीक है. So अब देखो मैच करो कौन सा है. So 3, 2, 1 and 4. So 3, 2, 1 and 4. So the right answer is D. And last one option. So you should know this. ठीक है. अब जो important constitutional provisions हैं which we have borrowed from different countries, I am highlighting you here. So remembering all is not पॉसिबल, तो मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दे रहा हूँ. जैसे यूके यानी ब्रिटेन से वी हैव टेकन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट पूरा वहीं से लिया हुआ है. रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, है ना. वी हैव प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, सो सिमिलरली वी हैव प्राइम मिनिस्टर इन इंग्लैंड. ठीक है. देन वी हैव जैसे कैबिनेट सिस्टम है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं. ठीक है. देन आई थिंक इतना काफी है. ऐसे बताने को बहुत कुछ बता सकते हैं, सिंगल सिटीजनशिप एंड ऑल, बट प्रोमिनेंट वंस आई हैव डिस्कस्ड. सिमिलरली यूएस में सबसे पहले वही बिल ऑफ राइट्स और फंडामेंटल राइट्स है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन जुडिशरी से रिलेटेड जितना मैटर है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल. ठीक है. जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. जुडिशियल रिव्यू मींस इफ अ लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर, इफ दैट लॉ इज it goes against the provision of the constitution, it can be challenged in the Supreme Court or High Court, and the Supreme Court or High Court can strike it down or declare it invalid. That's called as judicial review. ठीक है. फिर अब एक दो चीज और, रिमूवल, जैसे impeachment of president, president के पावर है ना, ये सब concepts we have taken it from USA. Similarly, आयरलैंड से क्या लिया है, तो ये याद रखना, DPSP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. अगर ऊपर वाला याद रख लेना, ऊपर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है DPSP. सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, यह सबसे इंपॉर्टेंट,
ये याद होना चाहिए, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देन फ्रांस से वी हैव टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी. ये प्रीएम्बल में मेंशन्ड है. दिस इज मेंशन्ड इन आवर प्रीएम्बल, सो दिस यू शुड नो इट. ठीक है. कनाडा से मैं बता देता हूं, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. एक रेसिडुअल पावर्स, ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जिसको हम लोग कहते हैं फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर मींस देयर आर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट आर मोर पावरफुल. तो ये कॉन्सेप्ट कनाडा में है. सिमिलर कॉन्सेप्ट इज देयर इन इंडिया. ठीक है. सोवियत यूनियन, जिसको यूएसएसआर कहते थे, which no more exist, we have taken fundamental duties, very important, and planning commission. और जितने भी सोशल रिलेटेड थिंग है, सोशल जस्टिस है ना, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी वी हैव टेकन इट, और सोशलिज्म एंड ऑल, सो दीस टर्म्स वी हैव टेकन. देन एक बताया था साउथ अफ्रीका से, वी हैव टेकन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर, हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? कौन से आर्टिकल में मेंशन है? Means it tells, this article tells us, gives the parliament the power to amend the constitution. कौन से आर्टिकल मेंशन है? Please tell me. I'll be very happy to know. The right answer is article 368. याद रखिएगा. ठीक है. देन जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिया. ठीक है. तो जो जो मैंने हाईलाइट किया, अगर एटलीस्ट उतना भी पढ़ लोगे, सो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि उसी में से आ जाए. सो देयर हाईली लाइकलीहुड दैट दे कैन कम, क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम देयर. द नेक्स्ट इज वोट ऑन अकाउंट इज डेल्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? ये लास्ट ईयर जब इलेक्शन होता है ना, तब ये बहुत काम आता है ना. इलेक्शन में भी ऐसे, नॉन इलेक्शन में भी काम आता है ना. वोट ऑन अकाउंट मतलब होता है कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे बजट को जब पास किया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना. तो उस वक्त के उस जो प्रोसेस है टाइम लगने का, उस बीच के प्रोसेस में अगर एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का, तो वोट ऑन अकाउंट से खर्चा उठा लिया था. अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वैलिड नहीं होता है, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल. मोस्ट लाइकली ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट यू शुड नो वोट ऑन अकाउंट इज एक्चुअली रिलेटेड विद आर्टिकल 116, बिकॉज अब जो है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये वोट ऑन अकाउंट. सो जस्ट रिमेंबर इट प्लीज, द राइट आंसर. Now, budget is referred by which term in the Indian Constitution? ये 1 फरवरी को पेश भी किया जाएगा, 1 फरवरी 2025 को. It will be presented by the Finance Minister of India, Miss निर्मला सीतारमण. ठीक है. और 1 फरवरी से 2-3 दिन पहले, 1, 2 और 3 डेज पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म, है ना. इसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का बहुत रोल होता है, ह्यूज रोल ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन राइटिंग दिस. ठीक है. सो बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? सो देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड मेंशन इन बजट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द आंसर इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं. दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 112. ठीक है. सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. प्लीज रिमेंबर इट. अगर आप आर्टिकल 112 पढ़िएगा तो बजट वर्ड नहीं मेंशन है, बट वी जनरली कॉमन पार्लेंस में हम लोग बजट कह देते हैं, बट इन रियलिटी इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी को हम लोग बजट कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, मतलब कॉमन टर्म्स में. सो यू शुड नो दिस. ठीक है. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. मनी बिल इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई इज मनी बिल सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज बजट भी एक तरह का मनी बिल ही होता है. उसमें मनी बिल रिक्वायर्स ओनली कंसेंट फ्रॉम लोकसभा. सिर्फ लोकसभा से पास होना जरूरी होता है. इट इज इनिशिएटेड, है ना, इट इज प्रेजेंटेड ओनली इन लोकसभा. सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है. 5 दिन लोकसभा, गोज टू राज्यसभा. राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होता है. राज्यसभा इज पावरलेस. जस्ट फॉर 14 डेज इट कैन डिस्कस कर सकता है, कुछ एडवाइस वगैरह दे सकते हैं, है ना. इट कैन गिव सम एडवाइस टू द लोकसभा. सो मनी बिल कैन नॉट बी स्टॉप्ड इन राज्यसभा. याद रखिएगा, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड इन राज्यसभा. एट मैक्स फॉर 14 डेज राज्यसभा कैन डिस्कस इट. So exclusive power Lok Sabha का होता है. So that it is presented in Lok Sabha and passed in Lok Sabha only. ठीक है. So even if Rajya Sabha rejects, it doesn't impact at all. ठीक है. ये पता होना चाहिए. Money bill is mentioned in Article 110. Yes, Praveen Nayak, you are right. B is the right answer to this question. ठीक है. So definition of money bill ये है. ठीक है. आप चाहो तो पढ़ सकते हो क्या क्या, अगर ये सब है तो money bill में आएगा. The right answer is B. Let's move on to the next one. Which of the following schedule of the Constitution talks about mentions 22 languages?
इससे पहले कभी आंसर था? नो, प्लीज टेल मी. So I hope you are aware. Originally we had 8 schedules of the Indian Constitution. Now we are having 12. ये original था 1950 में. Now we are having 12 schedules. So which schedule mentions 22 Indian languages? And these all are Indian languages. Yes, Praveen Naik, you are right. The right answer is B is the right answer to this question. So 8 schedule में 22 languages mentioned है. चलो एक दो और important चीज मैं पूछ रहा हूँ. Please tell me 7 schedule में कौन सी language क्या है? What is so special mention in 7 schedule? और ऑप्शन डी जो आपसे छुप जा रहा होगा ये 10th शेड्यूल है यहाँ पे लिखा हुआ. ठीक है. So let me clarify. So 7th schedule talks about 3 lists. Okay. So union list, state list and concurrent list. ठीक है. और 10th schedule क्या चीज की बात करता है? What does 10th schedule talks about? ये 3 लिस्ट है कि अगर यूनियन लिस्ट में कोई आइटम है तो द यूनियन कैन मेक लॉज, इसमें स्टेट कैन मेक लॉज, और करंट लिस्ट में कोई आइटम है सो बोथ स्टेट एंड सेंटर कैन मेक लॉज. जैसे यूनियन में मान लो फॉर एग्जांपल इसमें लिखा होगा डिफेंस, सो डिफेंस में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर. स्टेट में जैसे पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया. कंकरेंट लिस्ट जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, इसमें बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज. ठीक है. 10th schedule deals with what? So 10th schedule deals with anti-defection law, which was brought by 52nd Amendment, 52nd Constitutional Amendment 1985 during Rajiv Gandhi time. Okay. Now you will be thinking, sir, क्या है? Then what is anti-defection law? So anti-defection law means ये क्या है anti-defection law? It is a law made, actually defection क्या होता है पहले समझोगे तो समझ में आ जाएगा. Defection means जैसे कोई बंदा A, he joined political party, मान लो P political party ज्वाइन किया. Okay, he got the ticket, he became a member of parliament, and after becoming member of parliament he is joining some other party Q. ये तो गलत बात है, अनएथिकल हो गया ना कि आप किसी और पार्टी से टिकट मिला आपको, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, फिर किसी और पार्टी में चले गए. तो टू स्टॉप दिस, so if you become a member of parliament from one party and joins another party, then you will lose the seat. इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ. यानी ये नहीं करना बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अनएथिकल कि आपने पार्टी को और ज्वाइन किया, उससे आपको सीट टिकट मिला, आपने इलेक्शन जीता, फिर कहीं और चले गए. सो दैट्स कॉल्ड एज एंटी डिफेक्शन, है ना. तो 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन, दैट्स कॉल्ड एज डिफेक्शन, और उसके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया. आई होप इट इज क्लियर. इज इट क्लियर गाइस? बताइए. Okay, so 8th schedule की हम लोग बात कर रहे थे. So in 8th schedule of the Indian Constitution, these are the 22 languages. ठीक है. अब इसमें गौर से देखना, हिंदी is there, Indian languages में आपको हाईलाइट करा, उर्दू is there, but English is not there. Why? Because English is not in Indian language. ठीक है. फिर आसामीज, बंगाली सब इंडियन लैंग्वेज है. एक दो और ध्यान रखना, नेपाली, नेपाली भी इंडियन लैंग्वेज है, मतलब इंडिया में बोली जाती है ओरिजिनली. ठीक है. सो दैट इज व्हाई नेपाली इज आल्सो देयर. ठीक है. फिर सिंधी, देखो सिंध तो पाकिस्तान में प्रोविंस, but still Sindhi actually का impact है गुजरात and all region में. So actually it is in Indian language it is considered. ठीक है. फिर मैथिली तो बिहार का है, डोगरी भी कश्मीर में, संस्कृत is also an Indian language. तो important ones सारा 22 याद रखना शायद possible नहीं होगा, but important ones I have discussed. Okay, so the 3 languages included in the 8th schedule, 22 ये पूछा हुआ है 71st amendment. 8वें शेड्यूल में ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स लैंग्वेजेस थे? 14 languages were there in 1950. And now currently we have 22 languages. Currently मतलब आज. तो इस बीच में 8 लैंग्वेज को धीरे धीरे ऐड किया गया. ठीक है. सो 71st अमेंडमेंट में 3 लैंग्वेज ऐड की गई थी. उसका नाम पता नहीं, पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. आई नो इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इफ यू आंसर मी आई विल बी वेरी हैप्पी. सो द आंसर एक्चुअली इज डी. कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. कोंकणी जो है ना, कोंकण एरिया में बोला जाता है. कोंकण आप बोलोगे जो गोवा वाला रीजन है, गोवा के आसपास, दैट्स कोंकण रीजन. मणिपुरी इज इन मणिपुर स्टेट. नेपाली जो है, नेपाली लैंग्वेज है, वो आई थिंक बिहार यूपी के बॉर्डर पे नेपाल है, सो उस रीजन में बोला जाता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू शुड नो.
Yes, very good. D is the right answer. Sabir is right. Okay, so these are the languages. Originally, there were 14 languages. So over a period of time, the languages started getting added. So like in 1967, Sindhi was added by 21st Amendment. Then 1992, ये जो पूछा एग्जाम में 71st Amendment में कौन करनी मणिपुरी में मैती वही नेपाली were added. Then 2003, Bodo you'll find it in Assam. Bodo land is there. Dogri, you'll find it from Kashmir. Then Mathili is from Bihar, and Santhali, actually Santhali is there. Santhal is a tribe in Jharkhand, Odisha region. In fact, the current president of India, Miss Draupadi Murmu, is actually Shrimati Draupadi Murmu is also from Santhali tribe. ठीक है? So ये 92nd amendment में ऐड किया गया. Then 2011 में ओडिया की खाली स्पेलिंग करेक्ट की गई थी. ओडिया ये कर दिया गया. So क्योंकि ये वाला पूछा हुआ है, so maybe they can ask others. So I have discussed. Let's move on, है ना? ये हो गया. आप चाहो तो पढ़ सकते हो. Let's move on to the next one. Which are the following section of IPC deals with defamation? देखो अब ये नहीं पूछेगा because now Indian Penal Code is over. अब ये पूछेंगे, ये भी previous year question ही actually. Previous year actually ये news में था because of Rahul Gandhi's defamation case and all. आपने सुना होगा he was convicted and all. ये उस टाइम पे फेमस हुआ था, इसीलिए मैंने डिस्कस किया था. अदरवाइज अब ये नहीं पूछेंगे, अब ये पूछेंगे कि the new laws were made. ठीक है, जो इंडियन पेनल कोड है, now it is called as BNS, भारतीय न्याय संहिता. ये आपको पता होना चाहिए, BNS. Then code of criminal procedures, है ना, CRPC जिसको कहते हैं, now it is called as BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. और इंडियन एविडेंस एक्ट. So let me make it with some other pen, green pen से करता हूँ. Indian Evidence Act is now called as BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ठीक है, ये 3 new laws हैं. I hope you are aware, it was implemented from 1st July last year. So you should know about these things. ठीक है. Now the next is which article of the Constitution talks about freedom of speech and expression? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ because इससे related एक question previous year में आया हुआ है. ठीक है, related with this. That is why I am discussing. Can anyone tell me? So the right answer is Article 19 talks about freedom of speech. So Article 19(1)(a) talks about freedom of speech and expression. ठीक है, but उसी में Article 19 Clause 2 talks about 8 reasonable restrictions. Yes, Praveen Naik, you are right. यानी there is freedom of speech and expression, but it does not mean that it is unlimited. Freedom of speech का ये मतलब नहीं जो चाहो बोल दो, गाली गलौज कर दो. No, it's not like that. So there are reasonable restrictions. ठीक है, 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है. तो क्वेश्चन ये आया था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना. आप देखो, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स एंड रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19(1)(a) टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इन है. सो जर्नलिस्ट का जो फ्रीडम है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस या प्रेस फ्रीडम, वो यही से आता है. ठीक है, ओके. एंड देखो क्वेश्चन आया था, whom among the following has been given the power by the constitution to impose reasonable restrictions. तो वही है वो, ये टर्म जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मेंशन्ड है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. वेयर इट इज मेंशन्ड, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट. कौन लगा सकता है? तो जनरली जब लॉज बनाने की बात होती है तो आपको पता होगा पार्लियामेंट ही लॉज बनाती है. ठीक है, सो द आंसर इज बी. ठीक है, जनरली इट इज बी, बट कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट भी आप लिख सकते हो, बट जनरली द आंसर वाज एक्चुअली बी. ठीक है, बिकॉज लॉ बनाने का जो जनरल पावर है, इन जनरल द पावर इज विद द पार्लियामेंट, है ना. देखो, नथिंग स्टार्ट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, इंपोजेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट्स, है ना. जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो रिस्ट्रिक्शन है वो है कि इफ यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, you cannot speak things which will impact the foreign relations with any other country, you cannot create public disorder, indecent या immorality नहीं spread कर सकते हो, you cannot make the mockery of the court, you cannot defame someone, or you cannot incite to an offense. Incitement of offense मतलब भड़काना नहीं है, मतलब freedom of speech का ये मतलब नहीं कि भड़काना. So these are 8 reasonable restrictions, means these are not considered as freedom of speech. ठीक है, वो उसमें एक exception या condition reasonable restriction है. Okay. Article 371 capital A provides a special privilege to which of the following state. तो क्या आर्टिकल 370 होता था, now it is not valid, it provided special status to Jammu and Kashmir. ठीक है,
सिमिलरली आर्टिकल 371 कैपिटल ए से लेकर आर्टिकल 371 कैपिटल आई तक ऑल्सो इट गिव्स सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल स्टेटस, एक तरह का स्पेशल स्टेटस है जो कि डिफरेंट स्टेट्स जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सम पोर्शंस को देता है, ठीक है। सो दिस आल्सो यू शुड बी नोइंग 371 कैपिटल ए जो है नागालैंड को देता है, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो है ना, स्टेट ऑफ नागालैंड लिखा ना, स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। ओके, एक बार 371 ए से लेकर 371 आई तक पढ़ लीजिए, एक बार देखिएगा, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। ओके, सो ट्राई टू रीड अबाउट दैट। 371 ए में क्या है, 371 बी में क्या है, 371 सी कैपिटल ए है, ये मतलब एक सेपरेट आर्टिकल है, ठीक है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, जो हम लोग शेड्यूल्स वगैरह की बात किए हैं, तो स्पेशल प्रिविलेजेस की बात की है, तो एक और स्पेशल प्रिविलेज जो होता है ना, वो दो शेड्यूल्स में भी होता है। एक 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, जो स्पेशली फॉर ट्राइबल एरियाज की गवर्नेंस के लिए होता है, ठीक है। और 6th शेड्यूल एरियाज होता है, ठीक है, वो भी ट्राइबल एरिया की गवर्नेंस के लिए होता है, बट 6th शेड्यूल में ऑटोनॉमी ज्यादा मिलती है, यू गेट मोर ऑटोनॉमी इन 6th शेड्यूल एरियाज। तो वो 4 स्टेट्स में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के सब रीजन्स में, ठीक है। तो सिमिलरली लद्दाख वाज डिमांडिंग 6th शेड्यूल स्टेटस, अगर आप देखो यहाँ लिखा हुआ है ना। सो 6 मतलब कि एंड देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज सोनम वांगचुक, आपने इनका नाम सुना होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम, सोनम वांगचुक। So he's a very famous person. I mean, इनके basis पर 3 Idiots film भी बनी थी. I'm sure you must have heard his name. So he's actually protesting that Ladakh should get 6th schedule status so that Ladakh will get some sort of autonomy. ठीक है. So थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए 6th schedule वगैरह का. And I've made a separate video. अगर आप interested हो तो आप just ये protest search करना. You will get this video. Okay, let's move on. Now, this question was, which of the following Indian dance shows influence of Persian culture? पर्शियन कल्चर मीन्स ईरान का कल्चर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, तो आप कॉमन सेंस लगाना। मोस्टली ईरान, इंडिया का जो इंपैक्ट ईरान वगैरह का नॉर्थ इंडिया में पड़ा है, इससे भी आप थोड़ा सा आंसर कर सकते हो। सो व्हाट इज द राइट आंसर? और अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी, जो मैंने ऑलमोस्ट 2 आवर्स की क्लास दी थी जैट रिवीजन पर, इसमें 10,000 व्यूज है, ठीक है। इफ यू गो देयर, लाइव वाले सेक्शन में जाके देखना, ग्रे कलर का थंबनेल है, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि एक्चुअली द राइट आंसर इज कथक। ये यूपी में होता है कथक, आई होप यू आर अवेयर, है ना। तो द राइट आंसर है पर्शियन इन्फ्लुएंस उसके पे, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर, है ना। कथक परफॉर्म्स इंक्लूड उर्दू गजल्स एंड कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स ब्रॉट ड्यूरिंग मुगल पीरियड एंड ऑल, ठीक है। तो इट इज द ओनली क्लासिकल डांस फॉर्म व्हिच हैज फीचर्स ऑफ पर्शियन एलिमेंट। ये आपको कट जा रहा होगा फोटो में, सो लेट मी शो इट। नाउ यू कैन सी होपफुली। ओके, तो आपने देख लिया होगा, मैंने आपको शो कर दिया। ओके, नाउ अब आपको समझना ये, मैंने आपको बिकॉज से क्वेश्चंस आता है कथक डांस एंड ऑल, सो दे डू आस्क क्वेश्चंस, है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए, दिस यू शुड नो। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर, है ना। तो होता क्या, देखो इधर ईरान, अफगानिस्तान के इधर में ईरान है, सो लेट मी शो, ठीक है। तो पर्शियन इन्फ्लुएंस जो होगा ना, वो नॉर्थ इंडिया में होगा, जो इस रीजन में। इसीलिए इवन जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, जैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो नॉर्थ इंडिया में होता है, उसका इंपैक्ट पर्शियन इन्फ्लुएंस, पर्शिया का इन्फ्लुएंस है। लेकिन साउथ में जो कार्नाटिक म्यूजिक होता है, व्हिच यू विल फाइंड इट इन तमिलनाडु, यू विल नॉट फाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन लैंग्वेजेस और पर्शियन इंपैक्ट, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग। तो यूपी में कथक डांस होता है ना, कथक डांस मैंने सेपरेट, मैंने ऑल द 8 डांसेस मैंने डिस्कस किया है क्लासिकल डांस। कौन से वीडियो में? जो जस्ट गो टू अवर लाइव सेक्शन, लाइव वाले वीडियो के लाइव सेक्शन में जाना क्लास की, ठीक है। यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में जाना, एक जैट पर मैंने रिवीजन क्लास लिया था, है ना, लास्ट सैटरडे को। आई होप यू आर अवेयर। ग्रे कलर का थंबनेल, ऑलमोस्ट 2 आवर्स की क्लास है, 1 आवर्स 44 मिनट की। सो उसमें जाके वी हैव डिस्कस्ड इट, और मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द क्लास ही बोला है कि वो वाली क्लास जरूर देखिएगा। प्लीज वॉच दैट क्लास एज वेल, because that is beneficial. Let's move on to the next one. Who among the following was the ruler of slave dynasty?
So I hope you are aware. So this is the first dynasty of Delhi Sultanate established in 1206. So slave dynasty का एक और नाम है Mamluk dynasty है ना. It's also called as Mamluk dynasty. And it was one of the dynasty of Delhi Sultanate. तो जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड था that was from 1206 to 1526. तो उसमें जो फर्स्ट डायनेस्टी थी वो स्लेव डायनेस्टी और मेमलूक डायनेस्टी कहते हैं, which was founded by which person? मतलब वो अच्छा से फर्स्ट नहीं पूछ रहा, was the ruler पूछ रहा है, तो कौन इसके रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के? Yes, इल्तुतमिश. हुमायूं actually from मुगल डायनेस्टी, शेरशाह सूरी सूर एम्पायर से थे. ठीक है, so the right answer is C is the right answer, है ना. तो ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 established by कुतुबुद्दीन ऐबक, then इल्तुतमिश and then रजिया सुल्ताना. ठीक है, फिर खिलजी डायनेस्टी 1290 to 1320. famous king was अलाउद्दीन खिलजी. Then तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1415. मोहम्मद बिन तुगलक was famous, है ना. Then we have सैयद डायनेस्टी थे 1414 से 1451, इसमें खिज़र खान मुबारक शाह सैयद थे. Then लोधी डायनेस्टी 1451 to 1526. The last ruler was 1526 when Ibrahim Lodi was there. He was defeated by Babur in 1526 in the Battle of Panipat. Okay. And the Lodi dynasty or the Delhi Sultanate collapsed. And then Mughal Empire came in 1526. Okay. So you should know these facts. Let's move on to the next question. You have to tell the chronological sequence. Indian national movement में कौन सी चीज कब हुई थी? You have to tell us in the chronological sequence. यानी कौन पहले हुआ फिर बाद में and all like that. Anyone? Gandhi Irwin Pact, March 1931. Nehru Report. This is Motilal Nehru, father of Jawaharlal Nehru. उनके नाम पे नेहरू रिपोर्ट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक. क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942. तो हो गया बी ए नहीं सी से स्टार्ट, सी बी ए डी, सी बी ए डी. सो द राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन. तो बी इज द राइट आंसर. ठीक है, सो ये सब पता होना चाहिए. ठीक है, और फेमस इवेंट्स है जैसे कुछ और चीज बता दे रहा हूँ, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये बहुत फेमस है. ये हुआ था 1930 से 32 के आसपास, 31 32. ओके, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर, आपने सुना होगा. सो दिस हैपेंड इन 1919, 13 अप्रैल 1919. सो दीज आर और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1930 में, दिस वाज स्टार्टेड बाय डांडी मार्च. ये सब प्रोमिनेंट इवेंट्स है इंडिया की हिस्ट्री में, तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, और जस्ट पहले जलियांवाला बाग मैसेकर से जस्ट पहले रॉलेट एक्ट वाज ब्रॉट इन मार्च 1919. ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए. ओके, सो दीज आर द फेमस इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द हिस्ट्री. और एक दो चीज और बता देता हूँ. गांधी जी कब आए थे इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? 1915 गांधी जी केम. और गांधी जी की फर्स्ट सत्याग्रह कब हुई थी? 1917 चंपारण सत्याग्रह. So this happened in Champaran, the state of Bihar, first सत्याग्रह of गांधी जी. ठीक है, so जो prominent ones हैं, prominent events हैं, ऐसे तो बहुत है. If I keep on writing, then for the next half an hour I will keep on writing. तो उतना नहीं याद रखना है जो भी, लेकिन जो की इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जो बड़े बड़े इवेंट हुए, है ना. फिर एक और है साइमन कमीशन का 1928 के आसपास आया था, 27-28 के आसपास साइमन कमीशन वाज केम. ये भी याद रखिएगा. ठीक है, so this you should know. Fine. Let's move on. Who was the painter? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है and I know it was difficult. वो पूछ ये रहे थे कि इसमें पेंटर का नाम बताना है. तो फोटो कट जा रही है, so let me just hold on for a second. मैं इसको ठीक कर देता हूँ. I hope now you are able to see the question. Please answer me if you know it. ठीक है, so actually the right answer is option D, सल्वाडोर डाली इनका आंसर है. ठीक है, और ये बहुत मुश्किल है सब पेंटिंग याद रखना, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट पेंटिंग्स है जैसे लियोनार्डो डा विंसी की एक दो बहुत फेमस पेंटिंग, वो बता देता हूँ. ठीक है ना. सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, इससे पहले का आंसर डी था. यस, जानवी मल्होत्रा, यू आर राइट. इज द नेक्स्ट क्वेश्चन.
प्लीज टेल मी हु इज द पेंटर ऑफ मोनालिसा। ये आया नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं, ये बहुत फेमस पेंटिंग है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड बी नोइंग। सो द राइट आंसर इज रेनेसा पेंटर है ना, लियोनार्डो डाविंसी। यस प्रवीण जानवी यू बोथ राइट, बी इज द राइट आंसर। फिर इनकी एक और बहुत फेमस पेंटिंग है लास्ट सपर। ये लास्ट ईयर जब फ्रांस में पेरिस में ओलंपिक हो रहा था तो कुछ न्यूज में आया था कंट्रोवर्सी में एंड ऑल, तो ये भी पता होना चाहिए लास्ट सपर। ये बहुत फेमस पेंटिंग है लियोनार्डो डाविंसी की, ठीक है, ये पता होना चाहिए, वो इटली से रिलेटेड। फिर एक बहुत फेमस पेंटर है माइकल एंजेलो, इनकी बहुत सारी पेंटिंग है। एक है द पीटा, है ना, ये पढ़िएगा इनके बारे में, द पीटा। फिर एक है सीलिंग ऑफ सिस्टीन द चैपल, सिस्टीन द चैपल, ठीक है, ये सब पढ़िएगा थोड़ा पेंटर, ठीक है। सो दीज आर द फेमस वंस। ये वाला हो सकता है लास्ट सपर पूछ ले, बिकॉज लास्ट सपर लास्ट ईयर काफी न्यूज में था। Okay, the next is after the discovery of which of the following method the date of Harappan civilization was fixed। इन्हें कैसे पता चला कि हरप्पन सिविलाइजेशन वाज समवेयर अराउंड 2500 से 1500-1600 बीसी के आसपास था। 25 रहते हैं 2600 बीसी, रफली ऐसे ही कुछ लिखते हैं, ठीक है ना। सो हाउ डू वी गेट टू नो और व्हाट वी कॉल इट एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, कैसे डेट पता चला, with the help of which technology? रेडियो कार्बन डेटिंग। यस प्रवीण प्रीतम यू बोथ राइट, डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आपको पता होगा ना C14 का कार्बन आइसोटोप वगैरह सब यूज किया जाता है, मतलब खैर मतलब कि इसमें कितना कार्बन बचा है उससे अंदाजा लगाया जाता है ना, कि दैट्स यू शुड नो, डी इज द राइट आंसर, है ना, रेडियो कार्बन डेटिंग एंड ऑल, और कार्बन 14 डेटिंग, सो यू शुड नो, है ना। ये आपको पता होगा, वी हैव डिस्कस्ड इन द पास्ट क्लासेस, एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस करके मैंने क्लास कराई है। इस YouTube चैनल के लाइव सेक्शन में जाना, नीचे जाना, एक वीडियो मिलेगा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस करके थंबनेल पे लिखा हुआ, प्लीज वॉच इट। उसमें मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा क्वेश्चंस डिस्कस करा है, ठीक है। लाइट ब्लू कलर का थंबनेल होगा, लाइव सेक्शन में जाना, वीडियोस में नहीं, लाइव वाले सेक्शन में जाना, नीचे स्क्रॉल करते जाना, आपको मिल जाएगा, ब्लू कलर का थंबनेल होगा, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस करके। पर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशंस एंड द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद दैट। So I'm not repeating it because मैंने चूंकि ऑलरेडी करा दिया है, तो रिपीट करने का उतना कोई सेंस नहीं बनता है। The next is foundation of modern education system was laid down by which person, which of the following act? बस इतना समझ दो कि we are discussing, I mean almost all the things are in English languages and all, and this is because of this law or this event। so हम लोग सबको अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब इस की बात हुआ। So what is that? Yes, प्रीतम प्रवीण यू बोथ राइट, मैकॉलेज मिनट ऑफ 1835, ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी लिखते हैं, एक्ट 1835। सो लॉर्ड मैकॉले कमिटी वाज सेट अप, ये कमिटी आई थिंक 1833 के आसपास बनाया गया था, एंड मैकॉलेज लॉर्ड मैकॉले कमिटी वाज सेट अप बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। सो विलियम बेंटिक ने बनवाया था, विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने मैकॉले कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि एवरीथिंग शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑल। सो ऑफिशियल लैंग्वेज 1837 में आई थिंक इंग्लिश वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ऑल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हंटर कमीशन 1882 का, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है और ये भी एजुकेशन से ही रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए बस। खैर, हु इज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, आगा खान। व्हाट इज द राइट आंसर? It was founded in the year 1906 in Dhaka, which is today in Bangladesh. And many people would be answering A, which is a wrong statement. The right answer is option C. ठीक है। So Aga Khan का भी रोल था, but main is Nawab Salimullah of Dhaka was the main person behind the foundation of Muslim League. उस टाइम पर मोहम्मद अली जिन्ना was not in the picture. ठीक है। So the right answer is C is the right answer to this question. ख्वाजा सलीमुल्लाह लिखा है, this is the main person, okay, है ना। So here is India, this is Bangladesh, and here is Dhaka. So the right answer is C. I haven't got the right answer, ठीक है, कोई बात नहीं। So let's move on further, guys. Everyone please press the like button, and those who have not subscribed to the channel, please subscribe to it as well. Who is the founder of Indian National Congress? और आपको दो तीन चीज और बताना है, in which year it was founded and who was the first president, और जब फाउंडेशन हुआ कौन से सिटी में था, in which city on which was founded? Yes,
Praveen Naik, you are right. A.O. Hume, Alan Octavian Hume is the founder. Janvi, you are also right. Akant, yes, right. कौन से ईयर में? 1885, W.C. Banerjee. Very good, Praveen Naik. 1885 established W.C. Banerjee. Vomesh Chandra Banerjee was the president, and the first session happened in Bombay. Yes, Praveen, you're right. Pritam, you're also right. Huh? So first session, Bombay session हुआ था December 1885. W.C. Banerjee was the president. Founder A.O. Hume होंगे और first president कहा जाए तो W.C. Banerjee. ठीक है? Which of the following is the oldest Veda? I hope you are aware there are 4 Vedas. तो पूछा ये क्या था? ये सबसे oldest Veda कौन सी है? What is the right answer? Yes, Janvi, Praveen, you both right. A is the right answer to this question. Yes, Kunal, Praveen, you are right. अच्छा, इन चारों में से कौन से वेदा में, अच्छा मैं ये पहले बताता हूँ, ये सीक्वेंस में नहीं, सबसे ओल्डेस्ट ये, फिर सेकंड ओल्डेस्ट ये, फिर थर्ड ओल्डेस्ट, फिर फोर्थ ओल्डेस्ट, मतलब इट इज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, सबसे न्यूएस्ट वन ये वाली. ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर. नाउ अब आपको ये बताना है कि विच वेदा टॉक्स अबाउट, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन and it believes that disease can be treated by charms and spells. मतलब जादू टोना का कार्ड जादू टोना में कहते ना है उस तरह का, तो which actually medicine Vedas talks about this. यानी अगर बीमारी हो गई है किसी ने, मतलब एक तरह से ऐसा कहा जाता है, तो charms and spells, तो उसको काटना भी है ना, तो that can be also done by charms and spells से. Yes, अथर्ववेद, right. Yes, Praveen, you're right. सामवेद talks about music and all, तो म्यूजिकल टोन्स वगैरह की डिस्कशन है साम से, याद रख लीजिएगा. सो कभी कभी ये सब पूछते हैं, ठीक है, एग्जाम में. फिर एक और क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा था, गायत्री मंत्र. हैव यू हर्ड दिस टर्म? दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच वेदा? ये सुना है गायत्री मंत्र? दिस क्वेश्चन आई सॉ इन सम एग्जाम. टेकन फ्रॉम व्हिच वेदा? Yes, Rigved. Very good. Janvi, Praveen, Flacon ने कहा भी नहीं. Janvi and Praveen, you both are right. Rigved से लिया गया. ठीक है. So A is the right answer. ठीक है. So ये आपको पता होना चाहिए, है ना? तो अथर्ववेद talks about spells, charms, prayers, hymns, sacrifice, prayers, सामवेद. This is the oldest one. Rigved है पहला, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद. Which of the following was the first foreigner to visit India? Interesting question. I'm expecting what to answer. Let me see how many of you can answer. Yes, Praveen is saying भी. तो ये बिफोर क्राइस्ट में आए थे, बाकी सब एडी में आए थे. ठीक है. So this is quite interesting and important also. The first foreigner to visit India was Megasthenes. कहाँ से थे ये बताओ, कौन से कंट्री से आए थे? Megasthenes came from which country? He was sent by which king? In the court of which king? बहुत फेमस थी ये सारे इंसिडेंट, और ये सारी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. So that is why I'll be discussing the entire thing behind it. बताओ. ग्रीक थे. Yes, Praveen, you're right. ये ग्रीक थे. And he was sent by which king? समुद्रगुप्त के टाइम पे आए थे? नहीं, not समुद्रगुप्त. He was sent by which king? In which king's court? यानी किस राजा ने भेजा था, किस राजा के दरबार में? BCAD के बारे में बता दो. अच्छा, बता देता हूँ. ठीक है. तो BCAD बताया, someone is asking. देखो ये 0 है ना, 0 मतलब जीसस क्राइस्ट की बर्थ. जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियंस लोग के प्रॉफिट, दे बिलीव कि दिस इज द बर्थ, है ना. उनके बाद जो जमाना है, सो लाइक वी आर इन 2025, सो दीस आर कॉल्ड एज AD, एनो डोमिनी, या CE लिखते हैं, क्राइस्ट एरा. जब भी हम लोग चल रहे हैं ना, एनो डोमिनी,
यानी गॉड्स एरा एंड ऑल, सीई मतलब क्राइस्ट एरा, ठीक है। और इनसे पहले की जो पीरियड है उसको बीसी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट, या बीसीई लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। सो दीज आर द टर्म्स यू शुड नो। तो okay, so Megasthenes was a Greek ambassador sent by Seleucus Nicator, the successor of Alexander, in the court of Chandragupta Maurya, ठीक है। अब नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताता हूँ, देखो सिंपल लैंग्वेज, हियर इज इंडिया, ये है ग्रीस, ठीक है। आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड इट, तो इसका बहुत बड़ा सा एम्पायर था, है ना। सो दिस इज हियर समवेयर वाज अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नाम सुना होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड, जिनको हिंदी में सिकंदर कहते थे, ठीक है। सो आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, इनकी डेथ के बाद हिज सक्सेसर वाज सेल्यूकस निकेटर, वो इस रीजन में उनकी हुकूमत थी, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सो ही वाज आल्सो अ ग्रीक किंग, अ सक्सेसर ऑफ अलेक्जेंडर, ठीक है। इन्होंने एक एम्बेसडर भेजा था इंडिया में, इंडिया में कहा, बिहार में, पटना है, पटना में, एट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एज पाटलिपुत्रा, तो टुडे इट इज कॉल्ड एज पटना, ठीक है, ओके। तो पटना में इनफैक्ट देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज कुम्हरार पार्क, कुम्हरार पार्क इज देयर, और कुम्हरार रीजन, तो वहां पर आपको 80 पिलर्ड हॉल मिल जाएगा, वहीं पे कैपिटल थी चंद्रगुप्त मौर्य की, इट वाज द कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य हु वाज द रूलर ऑफ फर्स्ट रूलर ऑफ, फाउंडर कह सकते हैं, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है, ओके। तो जो सेल्यूकस निकेटर ने एम्बेसडर भेजा था उसका नाम क्या था, उस बंदे का नाम था, द नेम ऑफ द पर्सन वाज मेगास्थनीस, ठीक है। ही केम, और वो बंदा पटना में रहा काफी साल, मतलब पाटलिपुत्रा में, एंड ही ऑब्जर्व, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता था वहां पर, अभी भी अगर आप कुम्हरार पार्क इफ यू गेट अ चांस टू विजिट, तो उसमें बहुत सारे रिमेन्स बचे हुए हैं पटना में, ठीक है। सो मेगास्थनीस यूज्ड टू लिव देयर एंड ही ऑब्जर्व्ड द थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग इन द गवर्नेंस, तो जो भी चीज होती थी इवेंट, उसको ऑब्जर्व करता था, फिर उस बंदे ने एक किताब लिखी which became very famous. What is the name of that book? Please tell me. चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक एम्बेसडर भेजा गया था, जिसको राजदूत हिंदी में कहते हैं, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, और वो वही पाटलिपुत्रा में रहते थे, उन्हें फिर उन्होंने किताब लिखी। यस प्रवीण नायक, वेरी गुड, द बुक इज इंडिका, ठीक है। सो द टर्म इंडिका, जो इन्होंने बुक लिखी है इंडिका, यही से वर्ड इंडिया आया है। So when we say कि इंडिया वर्ड इज टेकन फ्रॉम विच पर्सन, सो विच कंट्री, सो ग्रीक ने दिया ये टर्म, याद रखिएगा। एग्जाम कंट्रोवर्सी इंडिया भारत वगैरह हो रहा था, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि द टर्म इंडिया इज एक्चुअली द टर्म गिवन बाय ग्रीक, नॉट बाय ब्रिटिश, बी केयरफुल, बिकॉज मैंने देखा कुछ लोग बोले थे कि ब्रिटिश के द्वारा दिया गया, बट नो, इट्स गिवन बाय ग्रीक्स, ठीक है ना। मेगास्थनीज वहां से आया कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ आई विल बी आस्किंग सम मोर क्वेश्चंस about it, है ना। What is the name of the book written by Megasthenes? Please tell me. And I hope Praveen has answered me. B. Indica. एक और किताब में डिस्कस करना चाहूंगा, वही है अर्थशास्त्र। So, इनके ऑथर का नाम बता सकते हैं कोई? Can you please tell me the name of the author? Yes, Praveen, you are right. ग्रीक्स जो है वो इंडस रिवर को सिंधु रिवर था, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, since you are talking about it, I'll discuss that. इंडस रिवर से है, वो आप सही है बता रहे हो, ठीक है। सो अर्थशास्त्र is a book written by very famous person. Have you heard this name? इनका नाम सुना है? चाणक्य या कौटिल्य? Have you heard this term name? And he was an advisor of which king? हाँ, so ये एडवाइजर थे ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन हो गए? यही जो अभी मैंने डिस्कस किया, या मैंने डिस्कस किया ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज। सो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। इन्हीं के एडवाइजर थे कौटिल्य या चाणक्य जिनको कहते हो, और उनकी बहुत फेमस बुक है अर्थशास्त्र, ठीक है। सो यू शुड नो इट, दिस इज वेरी फेमस एक्चुअली, अर्थशास्त्र पूछते हैं एग्जाम्स में, दैट इज व्हाई यू शुड नो। ये स्टेट क्राफ्ट पर है, स्टेट क्राफ्ट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना चाहिए, हाउ अ किंग शुड हैव एन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो किस तरह से सरकार चलाए, गवर्नमेंट चलाए, दैट्स द आइडिया।
खैर किसी ने पूछा था कि सर इंडस, इंडिका, इंडिया, देखो एक्चुअली वही कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखोगे, लेट मी शो इन द मैप, यहां पर जो है ना एक रिवर है ऐसे, इसको कहते हैं, इसको टेक्निकली कहते थे सिंधु रिवर, है ना, ठीक है। ये इनफैक्ट एक वेदा में भी कहा जाता है, मेंशन्ड है। तो इसी को जब ग्रीक्स जो है ना, तो ये दे यूज्ड टू कॉल कि अगर आप इसके पीछे जा रहे हो, मतलब यू आर गोइंग इधर पीछे बैक साइड, तो यू आर गोइंग टू इंडिया, इंडिया, सब वहीं से वर्ड है इंडिया। इवन द टर्म हिंदू, दोस पीपल हु आर लिविंग बिहाइंड दिस रिवर, दे आर कॉल्ड एज हिंदू, ठीक है। तो ये सारा टर्म वहीं से आया है। तो जो इंडिका बुक उन्होंने लिखा वो यहीं से लेके कि अच्छा ये लोग जो सिंधु रिवर के पीछे रहते हैं, इनको इंडिया, इंडो, इंडस, ये सारे वर्ड सेम है, सबका रूट वर्ड सेम है, थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेक्टेड फॉर्म है, समझ हो ना। इंडस, सिंधु को फिर इंडस बन गया, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। ओके, नाउ एक तो ये हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अदर्स। ये तो मेरा आंसर हो गया। इसके बाद जो फेमस ट्रैवलर आए थे उनका नाम था हुएनसांग, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूं, ये तीनों, बाकी तीनों चाइनीज थे, ऑल दीस थ्री वर चाइनीज ट्रैवलर एंड ही वाज अ ग्रीक। एंड वी आर डिस्कसिंग द अदर थ्री बिकॉज दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे हुएनसांग थे, इनको ऐसे भी लिखते, ठीक है, ऐसे स्पेलिंग में हुएनसांग, ठीक है। 600 एडी के आसपास आए थे। उसके बाद फाहियान आए थे, फाहियान पहले आए थे 300 समथिंग एडी में, ड्यूरिंग चंद्रगुप्त टू टाइम, और आई थिंक आए थे 635 से 713 एडी। तो मैं बताता हूँ, ठीक है, ये पूछते हैं कभी कभी। सो हुएनसांग वाज अ चाइनीज ट्रैवलर, केम अराउंड 600 एडी के आसपास, ठीक है। मैं रफली बता रहा हूँ ताकि याद रखने के लिए। एंड व्हेन ही केम टू इंडिया, नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन वाज रूलिंग। आपने नाम सुना होगा, पुष्यभूति डायनेस्टी के हर्षवर्धन, है ना। और इनकी कैपिटल होती थी थानेश्वर से कन्नौज, इनकी कैपिटल हो गई थी कन्नौज, वेस्ट यूपी में एक जगह है, ठीक है। अर्लियर हिज कैपिटल वाज थानेश्वर। एंड हुएनसांग कन्वर्टेड, एक्चुअली हर्षवर्धन लेटर ऑन कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड ऑल, आपने नाम सुना होगा, है ना। सिमिलरली तो ये 600 एडी, और फाहियान आए थे 300 400 एडी के आसपास, ठीक है। मैंने बताया मेगास्थनीज जो है ना, ये सिर्फ बीसी में थे, मतलब 200 300 बीसी के आसपास, एंड रेस्ट आर एक्चुअली इन एडी। तो बीसी पहले हो गया, बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो ये फाहियान आए थे एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त टू ऑफ गुप्ता एम्पायर, इनके जमाने में आए थे, ठीक है। दिस यू शुड नो। इसे पूछते हैं कि कौन किसके जमाने में आए। सिमिलरली वी हैव आयत सिंह, ये बाद में आए थे, मतलब 680 670 से 700 एडी के आसपास आए थे, ही केम लेटर ऑन, ठीक है। सो दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। चाणक्य वाज द एडवाइजर ऑफ, प्लीज टेल मी। अब मैंने इतना बता दिया है तो मैं थोड़ा सा तो उम्मीद करूं कि आप लोग आंसर कीजिए। चाणक्य या कौटिल्य भी इनको कहते हैं, कहीं कहीं पे विष्णु गुप्त भी लिखते हैं, कहीं कहीं पे समवेयर। हालांकि कॉमन नेम में कई और जगह भी यूज किया जाता है, बट यू शुड नो। यस, व्हाट इज द राइट आंसर? यस, प्रवीण नायक एंड जानवी मल्होत्रा, यू बोथ राइट। चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में ना, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। सो इनके एडवाइजर थे, एंड ही वाज अ टीचर देयर इन तक्षशिला यूनिवर्सिटी आल्सो, ठीक है। ओके, है ना। तो ये सब मैंने बता दिया। यहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी आज मिलेगी, रिमेन्स मिलेगा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी व्हिच यू विल फाइंड टुडे इन पेशावर रीजन ऑफ पाकिस्तान। सो ही वाज अ टीचर देयर, मतलब वहाँ मिस्टर कौटिल्य चाणक्य, ठीक है। और कैपिटल यहाँ होती थी चंद्रगुप्त मौर्य की, बिहार, पटना, ठीक है। सो यू शुड नो दिस। लेट्स मूव ऑन। सॉरी। सो देयर इज अ प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो। So the Buland Darwaza at Fatehpur Sikri was built by Akbar in 1602. He wanted to commemorate his victory over Gujarat. What is right? The right answer is A. Both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. ठीक है, मैं बताता हूँ. So बुलंद दरवाजा जो, this is बुलंद दरवाजा.
This you will find it in Fatehpur Sikri. This was a capital built by Akbar. मतलब आपको 40 किलोमीटर के आसपास 30-40 किलोमीटर फ्रॉम आगरा मिलेगा. आगरा इज अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश, वेस्ट यूपी, वेर यू विल फाइंड ताजमहल, है ना. तो ताजमहल से 30-40 किलोमीटर दूर मिलेगा एक जगह. दिस वाज मेड अ कैपिटल बाय फतेहपुर बाय अकबर. ठीक है. और फतेहपुर सीकरी में ऑल्सो यू विल फाइंड द टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती ऑल्सो. एंड शेख सलीम चिश्ती से अकबर वाज वेरी मच इंस्पायर्ड, सो मच सो कि उन्होंने अपने बेटा का नाम सलीम रख दिया था. प्रिंस सलीम वाज एक्चुअली जहांगीर. सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस. तो ये फतेहपुर, ये जो बुलंद दरवाजा है ना, आप जो देख रहे हो आपके सामने, दिस इज द लार्जेस्ट गेट, है ना, बुलंद दरवाजा आई थिंक ऑफ द वर्ल्ड. तो ये कब बनवाया था? 1600 समथिंग, 1575 में बनवाया था अकबर ने, एंड टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात, बिकॉज ही वन ओवर गुजरात, डोर ऑफ विक्ट्री इसको कहते हैं. एंड दैट इज व्हाट, हाँ, 43 किलोमीटर्स फ्रॉम आगरा. ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना. फिर फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना भी था, ये भी कभी कभी पूछा था अकबर के द्वारा. सो ही एक्चुअली बिल्ट इबादत खाना वेयर ही यूज्ड टू डिस्कस, ही यूज्ड टू कॉल पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन, सो द स्कॉलर्स ऑफ ऑल द रिलीजन, है ना, एंड ही यूज्ड टू डिस्कस. ठीक है ना. तो सबके जो स्कॉलर्स उनको बुलाते थे, उनसे पूछते थे. इवन एथीस्ट वाज कॉल्ड आल्सो, कि आप अपनी अपनी राय रखिए, यू गिव योर ओन ओपिनियन अबाउट योर रिलीजन, टेल्स अस. ही वांटेड टू नो अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स एंड ऑल. दैट्स कॉल्ड एज इबादत खाना एस्टैब्लिश्ड. क्वेश्चन में 1602 लिखा है. अच्छा, so let me check it. Just hold on for a second. अब तो गलत हो जाएगा. बुलंद दरवाजा was made in the year. Just wait. Yes, आपने सही चीज पकड़ा प्रवीण, थैंक यू. बट लेट मी चेक. कहीं कहीं पे 1602 भी लिखते हैं, वही मैं देख रहा हूँ कैसा. देखो, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में तो 1575 लिखा है, तो आई थिंक तब तो उस हिसाब से ऑप्शन 1 शुड बी रॉन्ग. ठीक है. बट हमको एक बार इसका वेरीफाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्लास में टेल यू, बिकॉज इफ इट इज 1602 इज रिटन देन इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो फिर द आंसर वुड बी डी देन फ्रॉम दैट लॉजिक. ठीक है. थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी. ठीक है, याद रखिएगा 1575 है. ओके. नाउ so अब हम लोग ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी डिस्कस करेंगे, बट इट्स ऑलमोस्ट 1 hour इज ओवर. सो ऑन इन द नेक्स्ट सैटरडे at 8:30 PM we'll be having a class. We'll discuss science and technology. उसके अलावा भी कुछ और डिस्कस करेंगे. We'll try our best. कोशिश करूंगा कि we'll discuss things as much as possible. और एक चीज और मैं बता दूं, जिन्होंने शुरू में नहीं ज्वाइन किया था, so let me discuss. आप जाना, go to our YouTube channel. ठीक है. मैं बता इसलिए दे रहा हूँ कि बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. लाइव वाले क्लास में जाना. एग्जैक्ट का मैंने क्लास लिया है 1 hour 44 minute का, ये जरूर देख लीजिएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर CMAT आल्सो. ठीक है. फिर इस लाइव सेक्शन के नीचे जाना. सो यू विल गेट 2 फेमस वीडियोस, 2 वीडियो. एक में ब्लू थंबनेल होगा, उसमें लिखा होगा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस करके. एक क्वेश्चन होगा, उस पर एक थंबनेल होगा, ब्लू कलर का थंबनेल, मेरी फोटो लगी होगी, लिखा होगा पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो नहीं डिस्कस किया था, बट पॉलिटी पूरा डिस्कस किया था उसमें. ठीक है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी रह गया था, तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा वो. सो प्लीज गो, ये दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. इसके अलावा, इसके साथ साथ एक दो चीज और बता दे रहा हूं, वो आप देख लीजिएगा. आप जस्ट सर्च कीजिएगा नोबेल प्राइज विनर्स. चलो, ये मैंने इसमें बताया है इस वीडियो में. अगर आप ये पूरा वीडियो देख लोगे ना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है वो नोबेल प्राइज के बारे में कि कौन सा वीडियो देखना है. सो ये वाला भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा. तो दैट वुड बी हेल्पफुल. आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर. मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ, मेरा बस यही इंटेंशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीज आसानी से कम समय में कवर हो जाए. दैट इज द आइडिया. इसलिए मैं ये सब चीजें बता दे रहा हूँ कि आप पुराना वीडियो देख लो. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू एवरीवन. थैंक्स फॉर वाचिंग. हैव अ नाइस डे.